Hello everyone, I am Yas and welcome to our special series Campus to Corporate Placement Stories. In this series, I will be inviting guests from different companies who will share their real placement journey, the complete hiring process, interview experience, and some useful tips. The aim of this series is to give you clear and authentic insights into how companies hire, what kind of questions are asked, and how you can prepare better for your own placements. In today's episode, we have with us Mr. Chirag Rathi, who is currently working at Neo Solution as a software developer. They will take us through their journey from campus to corporate life and share some practical advice for students preparing for placement. So, let's begin today's conversation with Mr. Chirag Rathi. Can you please introduce yourself to our audience and little bit about your role and company? Yeah, of course. So, hello everyone. Myself Chirag Rathi, and I'm pursuing my BTech from the Vellore Institute of Technology, Bhopal campus. And like 6 months back, I got placed from the campus only in the new solutions, where I am currently working as the software development engineer one. So, if I'm talking about my role there, so basically I worked in the backend. And in the backend specifically, I worked on the PG services, that is the payment gateway services. So there I manage the microservices like Kafka, how the Kafka is used, and apart from that, I also contributed to the production level projects there. I am also developed some new features in the last some months, like the pay link is there, direct transfer is there. So if I conclude about my role, so it's a complete backend oriented role there. If I talk about other domains also in the company, so there is a good scope for the front end also, Android developers also, and iOS developers also, because my company Neo Solution has their own app, that is the Neo Global app. So yeah, it's a quite diversified in the tech field. It's a quite diversified company. There is a lots of scope to learn. So it's all about me. ओके भैया तो भैया आप बात करते हैं थोड़ा हायरिंग प्रोसेस के बारे में जैसे सोच लीजिए Okay. ऑन कैंपस था Yeah, it's on campus placement. हाँ तो इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे 10th का 12th का कुछ सीजीपीए का रहा होगा गैप ईयर हाँ, गैप ईयर इज ऐसा कोई कंपनी ने मेंशन नहीं किया था, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि 10th और 12th में आई गेस दे मेंशन 70%. मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर या 70 इज देयर. एंड सीजीपी आई रिमेम्बर कि दे ओनली डिमांडेड कि उनको सिर्फ 8+ पॉइंटर्स चाहिए. Or if I am talking about the further stages of hiring process, so हमारे टाइम पे थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस रहा, क्योंकि नियो सॉल्यूशन इज लाइक दैट कि वो सिर्फ लास्ट 3 इयर्स से वीआईटी से कैंडिडेट्स रिक्रूट कर रहे हैं. सो बट हाँ, हमारे टाइम पे क्या हुआ कि वी हैव नो एग्जाम, वी हैव डायरेक्ट इंटरव्यूज. In the previous years, what the pattern is there, na, they took the short list from the college, then they held the exam, and after that they conduct the interviews. But हमारे time पे ऐसा नहीं हुआ. We have direct interviews on the basis of resume selections. There is a very crucial point that I would like to mention. There is a resume selection, and the main thing is that in my batch, approx 1100 to 1200 resumes got submitted to the company, but they select only 60 resumes for the initial round of interview. 60 उसमें से फिर इंटरव्यू कितनों का हुआ Yeah. So first round में 60 candidates का interview हुआ, and after that first round is completely technical round. उस technical, and it's varied for everyone. Like some of the people's having it for the 1.5 hour to 2 hours, some are having less than 1 hour. So वो आपके रोल पे डिपेंड कर रहा था. They are not like offering you the specific role. They are quite clear that you have SD intern role initially. So there is a SD intern role initially. After that, there is a conversion part. So फर्स्ट राउंड इज कम्प्लीटली टेक्निकल ओरिएंटेड राउंड. वहां पे उन लोगों ने क्वेश्चंस पूछे आपके रिज्यूमे बेस कम्प्लीटली, व्हाट द प्रोजेक्ट्स यू मेंशन, इफ यू हैव एनी प्रीवियस इंटर्नशिप्स आल्सो. सो दे आल्सो आस्क द डीप क्वेश्चंस ऑन योर प्रोजेक्ट्स स्पेसिफिकली, बिकॉज द what I observe in the Neo ना,
कि they are quietly oriented towards the real time problems, real time projects. They are not into that ki we are fresher, we don't know much, so they are going to pamper us. No, they are quite clear ki they want good things, good developers with them. Yeah, they are always ready to teach you. So apart from that, there is a interview that is completely I want to say कि rely कर रहा था हमारे projects पे. हमारा DSA it's basic level, like one basic question, one medium level question. और उसके अलावा there is a basic subjects we have ना, computer networks, operating system, DBMS. So वो सब था. उसके बाद उन 60 people में से I guess 30 got rejected, 32 got rejected in the first round only. उसके बाद 28 are left for the second round. Second interview हाँ, round is also the technical round only. okay. Yeah, so second So, round is also technical round. Yeah, you are saying something? can you explain what was the question in first interview round? You want to ask ki what is the basic, what is the topic they are asking in the first round of the DSA? हाँ, yeah. तो फर्स्ट राउंड में उन लोगों ने सिर्फ एरे के स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस पुट अप किए, नॉट मोर देन दैट, बट उसमें दे हैव इजी एज वेल एज मीडियम लेवल क्वेश्चंस. ओके, ओके. या अगर आपको याद हो क्वेश्चन. if I remember, so there is one question in my first round uh, that is I'm not much clear, but I remember ki there is a question that you have one digit like 130 is there, and it's not in the string form, it's in array form like 1 comma 3 comma 0. Okay, हाँ, ओके. you have to add one, you have to print the output that is the like the successor digit of that digit. Suppose you have 130 1 comma 3 comma 0. सो अगर आप उसको ज्वाइन करोगे तो वो 130 होगा. तो आपको आउटपुट क्या प्रिंट करना है कि वो 131 आना चाहिए, लेकिन वो एरे फॉर्म में ही प्रिंट होना चाहिए. तो ओके, ओके. ये क्वेश्चन मेरे को याद है कि ये मेरे फर्स्ट राउंड में मेरे से पुटअप हुआ था. और हाँ, मैं एक चीज स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा, दे आर क्वाइटली रिलाई ऑन द oops पार्ट, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. बिकॉज मेरे को याद है कि मेरे इंटरव्यूअर ने मेरे को जस्ट oops का एक बेसिक स्निपेट दिया स्टार्टिंग में कोड का, एंड उसके बाद उसने मेरे से उसमें एब्स्ट्रक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कराए. एंड द ग्रेट थिंग इज दैट कि वो हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग चेक कर रहे थे. उन्होंने मेरे को कोई भी कोड रन नहीं करने दिया. उन्होंने मेरे को बोला कि विदाउट रन करे बताओ कि आउटपुट क्या आ रहा है. अच्छा. हाँ, तो ये मेरा फर्स्ट राउंड था. और जैसे कि मैंने सेकंड राउंड के बारे में भी बोला, सेकंड राउंड भी कंप्लीटली टेक्निकल राउंड था. वो भी 1.5 से 2 आवर तक गया है कुछ पीपल्स का, कुछ लोगों का लेस देन 1 आवर भी था. सो ये कंप्लीटली डिपेंड कर रहा था कि आपका इंटरव्यूअर कैसा है और आपका रिज्यूमे किस साइड रिलाई कर रहा है. लाइक यू आर अ बैकएंड गाय, यू आर अ डाटा साइंस गाय, या यू आर अ टेस्टिंग गाय, और यू आर अ लाइक फ्रंट एंड गाय. सो वो आपके इंटरव्यूअर और आपके रिज्यूमे पे डिपेंड कर रहा था. सेकेंड राउंड इज ऑल्सो कंप्लीटली टेक्निकल राउंड ओनली. तो वहां पे भी उन लोगों ने आपसे डीएसए पूछा है, वो आपसे ऊप्स, ओएस, डीबीएमएस सब पूछेंगे. और अगेन मैं वही बोलूंगा, वो लोग आपको आपके मेंशन किए हुए प्रोजेक्ट्स पे बहुत अच्छे से ग्रिल करेंगे, बिकॉज दे वांट टू नो रियली द डेप्थ ऑफ योर प्रोजेक्ट. बिकॉज मेरे को याद है मैंने एक चीज मेंशन की थी कि आई रिड्यूस दैट 15 to 20% लाइक डीबी क्वेरीज लेटेंसी. सो मेरे इंटरव्यूअर ने मेरे से क्लियरली पूछा था, शेयर योर स्क्रीन एंड शो एंड राइट डाउन द कंप्लीट प्रोसेस जस्ट इन द पॉइंट्स, कि तुमने कैसे वो डीबी की क्वेरीज की लेटेंसी को डिक्रीज किया है. सो वो आपसे रियल टाइम एग्जांपल आपके प्रोजेक्ट पे पूछेंगे. सो व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू एवरीवन कि जनरली हम लोग अपना एटीएस स्कोर सही करने के लिए मेंशन कर देते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट में इतने % का यूआई एनहेंस किया, इतने % का ये किया. सो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि
हमारा रिज्यूमे में जो हो वो रियल होना चाहिए, क्योंकि मैंने वो चीज डाली थी 15 to 20%, क्योंकि मैंने वो किया था। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट आप ऐसा कुछ मेंशन ना करो, क्योंकि मे बी आप एक पॉइंट पे आके किसी इंटरव्यू में स्टक हो सकते हो, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले डीपली कि आपने क्या लाइन फॉलो की थी, क्या प्रोसेस फॉलो किया था। सो ये सेकंड राउंड के बारे में था। सेकंड, मैं तो यही कहूंगा कि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में कोई डिफरेंस नहीं था, बट हाँ मैं इतना बोलूंगा कि सेकंड राउंड में थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ गया था। जैसे मैं बैकएंड में था तो मैं मेरे से बैकएंड के सर्वर साइड के बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे से। जैसे मेरे को कुछ क्वेश्चंस याद है, लाइक JWT टोकन के स्ट्रक्चर क्या होता है। मेरे से रैपिड फायर राउंड की तरह क्वेश्चंस पूछे गए थे स्प्रिंग बूट से, क्योंकि मैं जावा और स्प्रिंग बूट में बैकएंड करता हूँ। सो सेकंड राउंड इज लाइक कि वो आपको कंप्लीटली एनालाइज करेंगे फ्रॉम एंड टू एंड। ओके भैया। तो फिर या उसके बाद हाँ, तो आता सेकेंड आफ्टर राउंड। दैट इफ आई टॉकिंग अबाउट द टाइम लाइन ऑल्सो ना, सो हाँ। वी हैव फर्स्ट राउंड ऑन 10th of January. After ओके। that, there is no intimation from the company side from the next, like for the next 10 days. तो हमें भी लगने लगा था कि शायद कंपनी ने घोषित कर दिया है, कंपनी वापस नहीं आ रही है, हाँ। क्योंकि हमारा फर्स्ट राउंड हुआ, हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं था। बट लकीली ऑन 21st of January अगेन वी गॉट अ मेल दैट these 28 students have second round. Then we done with the second round on 23rd of January. फिर उसके बाद उन लोगों ने अगेन एक 3-4 दिन का गैप लिया, एंड अगेन 26 जनवरी को लिस्ट आई HR राउंड के लिए। लास्ट राउंड इज HR राउंड, दैट इज द थर्ड राउंड। हाँ। उन 28 लोगों में से ओनली 12 पीपल्स आर सेलेक्टेड फॉर द HR राउंड। फिर हमारा HR राउंड हुआ, एंड HR राउंड इज क्वाइट कूल राउंड। सो बेसिकली HR राउंड में हमारे HR ने हमसे जस्ट सिंपल क्वेश्चंस पुट अप किए कि हमने हम नियो के बारे में क्या जानते हैं, हमने नियो को हम इतने टाइम से उनके हायरिंग प्रोसेस में है, तो हमने उनके बारे में क्या क्या जाना। उन्होंने हमसे बेसिक पूछा कि लाइक नियो इज situated in the Bangalore, their tech team are in the Bangalore, so they ask कि would you like to relocate to Bangalore, आपको कोई इशू तो नहीं है। आफ्टर दैट उन्होंने कंपनी का कल्चर हमें बताया कि दैट इज वेरी हेल्पफुल। I would like to say कि it's very helpful because I am observing from the last 7 months. तो उन्होंने हमको बोला कि हम ऐसा हमारा कल्चर होता है, हमारे टाइमिंग्स के बारे में उन्होंने बताया, कंपनी की पॉलिसीज कुछ शॉर्ट में हमसे डिस्कस की। सो इट्स लाइक कि कॉमन कन्वर्सेशन राउंड। दे आस्क हम अबाउट आवर फैमिलीज, आवर पैशंस, आवर like our hobbies. So this is the common round. और ये राउंड आई गेस 5 to 10 minutes ओनली वो एंड हो गया था। देन आफ्टर दैट अच्छा। वी आर डन विद HR राउंड ऑन 27th, एंड हाँ। luckily we got a result on 29th of January. I still remember that time also, around 3:15 PM in a day we got a result, and luckily those 12 people got selected for the HR round. All are getting selected for तो यहाँ से the आप VIT भोपाल से 12 लोग सिलेक्ट हुए। नहीं, 12 लोग सेलेक्ट हुए VIT के चारों कैंपस से, जिसमें से ओके 4 ओके। लोग VIT भोपाल से थे। 4 हाँ। पीपल्स आर फ्रॉम VIT AP and 2 from Chennai and 2 from Vellore. ओके। हम्म। तो भोपाल का ये एक्यूरेसी ज्यादा था। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि भोपाल एंड AP आर ऑन द इक्वल रेट। ओके भैया। इवन जब हमने नियो ज्वाइन किया तो हाँ। हमारे से फर्स्ट बैच में सिर्फ अब तक वहां पे VIT भोपाल से एक ही सीनियर थे हमारे, बाकी सब अदर कैंपस से थे। फर्स्ट टाइम देयर आर मोर पीपल्स फ्रॉम द भोपाल। ओके भैया। या आगे बढ़ते हैं भैया। तो बेसिकली आपका ये 10 यानी कि 20 दिन के अंदर सारा प्रोसेस खत्म हो गया। 3 इंटरव्यू हुए। या 20 days। या और ये
मैं ये पूछना चाहूंगा, ये कंपनी आई कब थी? जैसे वीआईटी भोपाल की अगर स्पेसिफिक बात करें, या फिर पूरे वीआईटी कैंपस की, तो ये कंपनी जनरली कब आती है, कौन से मंथ में? हाँ, जनरली ऐसा होता है कि नियो विजिट करती है वीआईटी को इन द एंड ऑफ नवंबर और द स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर। लेकिन दिस टाइम व्हेन वी जॉइन ना, सो हमारे एचआर ने हमको बताया कि दे हैव सम, दे बिजी गॉट बिजी इन सम अदर वर्क, सो हमारी हायरिंग थोड़ा डिले हुई। दैट्स व्हाई दे केम दिस टाइम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी ओनली। बट ओके भाई। जनरली अगर हम लास्ट ईयर के स्टेटिस्टिक्स देखें तो वो हमेशा नवंबर लास्ट और दिसंबर स्टार्ट में बीआईटी विजिट करते हैं। ओके। अगर जैसे आप लोग का तो ये था सीधा इंटरव्यू हुआ, बाकी अगर या नॉर्मल जो हायरिंग प्रोसेस उनका होता न्यू, वो कैसे होता, अगर उनके बारे में कुछ होता? हाँ, उनके बारे में भी सेम ही था। उनका सिर्फ एक स्टेप ऐड हो जाता कि उनका इंटरव्यू होने से पहले एक एग्जाम होता। तो और उनका जैसे, उनका जो मेरे को, आई गेस आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई गेस कि दे हैव ओनली वन टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू। ओके, तो अगर आपको ये पता हो, जो एग्जाम होता है इनसे पहले, इंटरव्यू के पहले, जो आपका नहीं पता, बट अगर अगर पता हो, तो हम्म। उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं? लाइक एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है, No, कोर no, सब्जेक्ट भी only पूछे DSA जाते हैं? questions. Only three ओनली डी? or two DSA questions. Three or two DSA questions only. ओके ओके। और मीडियम क्या रहता है इसका? अगर मैं ये बोलूं कि उनका लेवल क्या होता है, तो आई वुड लाइक टू से कि इजी टू मीडियम है। मोस्ट लाइक आई आई वुड लाइक टू सी, ऐसा कभी नहीं होगा कि शायद बहुत हार्ड जाएगा, बट हाँ, हार्ड जा सकता है। इट्स अ केस है, बिकॉज ऐसा है कि सेकंड राउंड में कंपैरेटिवली कुछ हार्ड क्वेश्चंस डीएसए के पूछे गए थे। ओके, अगर आप ये टॉपिक बता दो, बीएसए के कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे हाँ, जाते हैं? मैं बोलूंगा कि अगर आप जावा में हो तो आपको कलेक्शंस और ये एरे लिस्ट है हैश लिंक लिस्ट, ये सब थोड़ा आना चाहिए आपको। एरे स्ट्रिंग्स तो देखो क्लियर होना ही चाहिए। लिंक लिस्ट और क्यूबी आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। और बाकी वो ट्रीज के बहुत मीडियम तक जाते हैं। ग्राफ का भी आप ये बोलो कि ग्राफ का क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, आप ज्यादा से ज्यादा ट्रीज तक कंसिडर कर सकते हो। हार्ड क्वेश्चन अगर आता है आपको तो वो एरे और स्ट्रिंग पे ही आने के चांसेस ज्यादा है। ओके भाई। हम्म। तो ये हायरिंग प्रोसेस तो अपना कंप्लीट हो गया, जैसे शुरू से हमें पता चल गया क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे प्रोसेस है, और इंटरव्यू एचआर राउंड हम्म। है। भैया अब मैं थोड़ा पर्सनल पे आता हूँ, पर्सनल। ओके। ओके, जैसे आपने प्रिपेयर कैसे करा था? देखो, मेरा हमेशा से सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी रहा पूरे प्लेसमेंट सीजन में, नॉट इवन पर्टिकुलरली फॉर नियो, कि मैंने प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होते ही अपने बेसिक सब्जेक्ट से कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, वो गो थ्रू कर लिए थे। उसके बाद अगर कोई इंटरव्यू आने वाला होता था या कोई प्रोसेस आ रहा है किसी कंपनी का, तो मैं हमेशा उससे पहले जस्ट मेरे पास हर सब्जेक्ट्स के नोट्स थे इन द पीडीएफ फॉर्म, जो मैंने सिर्फ खुद से बनाए थे। और खुद से इन द सेंस कि मैंने सिर्फ टॉपिक्स, हमारे पास करिकुलम होता है हमारे वीआईटी में, हमारे पास प्रॉपर, वहां से टॉपिक्स लिए। वो टॉपिक्स मैंने जीएफजी से कुछ उनका कंटेंट उठाया, कुछ किसी और जगह से उठाया। मैंने एक पीडीएफ प्रिपेयर कर रखी थी, हमेशा किसी भी इंटरव्यू से पहले वो पढ़ लेता था, क्योंकि वो पीडीएफ मैंने इस तरह से मेंटेन की थी कि उसमें सारे टॉपिक्स इन कंसाइज टू द पॉइंट थे। और अगर कभी मेरे को कोई डाउट होता था तो हमेशा मैं यूट्यूब वीडियो पे जाता था उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए और वो वीडियो देख लेता था। और अगर मैं बात करूं डीएसए की, तो डीएसए में तो देखो, आई ऑलवेज से कि यू ओनली द प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। और आप सब भी जानते हो कि आप लोग सीए कंप्यूटर साइंस लाइन में हो, तो डीएसए आपको हमेशा प्रैक्टिस से आएगा। तो डीएसए के लिए मेरा ये था पूरे प्लेसमेंट सीजन में। लास्ट में आते आते ये हो गया था कि मैं डेली की एक लीड कोड की और जीएफजी की प्रॉब्लम सॉल्व करता था, दैट्स इट। तो भैया कभी ऐसा होता था कि कुछ प्लीज। हार्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो उनके लिए मैं एक बार बेसिक्स थ्योरी वगैरह देख लेता था, ग्राफ और ट्रीज के लिए। ये मेरा अप्रोच रहती थी प्रेप के लिए।
भैया आपने हम्म जैसे अगर अभी हम बात करें तो अभी हम क्वेश्चन करे जा रहे हैं नंबर्स ऑफ क्वेश्चन। हम्म लाइक ओके मतलब कितना रिक्वायर होता है सॉल्व करना? देखो, मैं कभी भी ये नहीं मानता हूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना रिक्वायर्ड होता है क्या। ये कभी मैटर नहीं करेगा कि तुमने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। हमेशा ये मैटर करता है कि तुमने भले ही क्वेश्चंस 12, 15, 16, 50, आपने कितने भी कम क्वेश्चंस किए हो, बट अगर एक बार आपको अप्रोच बनानी आ गई ना, तो दैट इज द मेन थिंग दैट्स मैटर, कि इफ यू नो हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम, हाउ टू बिल्ड द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। सो आपको, यू ऑल्सो नोज, आप सबको पता है कि कोड में हम सिर्फ और सिर्फ जो हम सोचते हैं वो लाइन में लिखते हैं। तो हर क्वेश्चन का प्रीफेस अलग होता है, हर क्वेश्चन की डिमांड्स अलग होती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। तो मैं तो कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप ब्लाइंडली क्वेश्चन करते जाओ। उसमें कोई बेनिफिट नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखा, वो बहुत हार्ड लगा, आप यूट्यूब पे गए, आपने देखा, इंस्टेंट देख के कर दिया, लेकिन उसमें क्या होगा, आप 4-5 दिन बाद उसको भूल जाओगे। तो आई वुड लाइक टू से कि अगर ऐसा कभी हो रहा है तो एटलीस्ट यार पहले आप उसको ना खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। आप उसकी जितनी अप्रोच बना सकते हो उतनी तो बनाओ, उसके बाद आप जाके हेल्प लो, जब आप वापस आके उसको कर सकते हो। लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करो, क्योंकि देखो, इवन व्हाट आई वुड लाइक टू मेंशन ना, कि कंपनी वालों को अगर आप रिज्यूमे में मेंशन करते हो ना कि मैंने 350 प्लस लीड कोड क्वेश्चंस किए हैं, तो दे ऑल्सो डाउटेड। ठीक है, उनको भी पता है कि हाउ द सिंगल पर्सन डू द 350 प्लस क्वेश्चंस। या तो क्वेश्चन की नंबरिंग क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। आप कुछ स्टैंडर्ड शीट्स उठा लो, वहां से आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस और स्टैंडर्ड अप्रोचेस मिल जाएंगी, वो आप सीख जाओगे एक बार तो आप कुछ भी कर सकते हो फिर। लाइक मैंने जैसे स्ट्राइवर की डीएसए शीट फॉलो की थी। ओके भैया। हम्म, रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। ओके जैसे आपने अपना खुद का पीडीएफ बना रखा है, ओके ठीक, कोर सब्जेक्ट का, लाइक फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। देखो, मेरे पास ना मेरे 4-5 पीडीएफ थे बेसिकली। मैंने तीनों अपने कोर सब्जेक्ट्स की पीडीएफ बना रखी थी, ठीक है। उनमें सारे टॉपिक्स, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में ओएसआई मॉडल डीपली मेंशन किया हुआ था, किस लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, वो कैसे वर्क करता है, एवरीथिंग। वो पीडीएफ आप ऐसी बनाओ कि वो आपके लिए एक बुक है। क्योंकि मैं ना किसी बुक को प्रेफर पढ़ने से ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि जो मैंने खुद से बनाया है ना, कि उसका प्रीफेस मेरे को पता है, कि उसका फ्लो मेरे अकॉर्डिंग कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो आप वो पढ़ोगे ना तो ज्यादा बेटर रहता है। और जैसे मेरे 2 प्रोजेक्ट्स थे, तो प्रोजेक्ट्स के लिए मैं हमेशा बोलूंगा कि देखो, आप प्रोजेक्ट से यार कॉपी मत करो, ऑफ कोर्स। ट्राई करो कि एक रियल लाइफ प्रॉब्लम उठा लो, छोटू सी भी। आप अगर एक स्मॉल प्रॉब्लम भी आप लेके अपने प्रोजेक्ट में मेंशन कर रहे हो ना, अपने रिज्यूमे के अंदर, अपने प्रोजेक्ट्स के सेक्शन में, तो वो एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और आप एक प्रोजेक्ट आपको लग रहा है, आप उठा लो यार, चलो कहीं से आपको कुछ अलग अच्छा मिल रहा है, चलो उठा लो, आपको आपके पास टाइम नहीं है, बट स्टिल मैं तो यही बोलूंगा कि प्रोजेक्ट को थोड़ा सा टाइम दे दो। आप एक लाइक आप 1 ईयर पहले भी स्टार्ट करोगे ना प्लेसमेंट से, तो भी आप 2 अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स का गो थ्रू अच्छे से होना चाहिए। आपको लग रहा है कि प्रोजेक्ट्स में, देखो ऐसा होता है कि जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें टाइम टाइम पे ध्यान आती है, बाद में हम भूलने लगते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ था कि मैंने डॉक बना रखे थे दोनों प्रोजेक्ट्स के। उनका भी मैंने एक प्रॉपर फ्लो रखा था, कि पहले प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, फिर मैंने प्रोजेक्ट के जो मेन मॉड्यूल्स थे उनके अंदर कौन सा टेक यूज किया, कैसे यूज किया और क्यों यूज किया, तीनों चीजों के आंसर्स मेंशन किए हुए थे। फिर मेरे को जो जो दिक्कतें आई थी वो मैंने अलग से के क्वेश्चंस डाले हुए थे, फिर उनके आंसर्स मैंने उसमें लिखे हुए थे। क्योंकि इंटरव्यूअर्स वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम आई, आपने कैसे सॉल्व की, आपने ये पर्टिकुलर मॉड्यूल कैसे बनाया, आपने यही टेक क्यों यूज किया। तो डॉक ऐसा बनाओ कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आप बस इंटरव्यू दे ही रहे हो उस डॉक को पढ़ के। तो ये मैंने डॉक का फ्लो बताया। अगर आप ऐसा डॉक फ्लो मेंटेन करोगे ना, कि आपने ये टेक क्यों यूज किया, आपने ये मॉड्यूल क्यों इंप्लीमेंट किया, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, आपने वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करी, आपका फ्यूचर स्कोप क्या है, ये सब चीजें अच्छे से फिगर आउट कर लो अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे से अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हो। सो ये प्रोजेक्ट्स के बारे में था।
और डीएसए का तो मैंने ऑलरेडी बताया ही है कि प्रैक्टिस ही एक की है, उसके अलावा डीएसए में और कोई शॉर्टकट नहीं है। हम और किसी तरीके से डीएसए बिल्कुल नहीं सीख सकते। और अगर रिसोर्सेज में आप मेरे से पूछना चाहते हो तो मैं यही बोलूंगा कि आप बेसिक आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए गेट स्मैशर्स की वीडियो फॉलो कर लो, उससे बेटर कुछ नहीं है। उसकी प्लेलिस्ट बेस्ट है, मैंने वहीं से पढ़ा है, वहीं से पढ़ के नोट्स बनाए हैं, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक चीज ओके। मैं मेंशन करना चाहूंगा कि रेज्यूमे का फॉर्मेट बहुत मैटर करता है, रेज्यूमे बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग में ऑफ कोर्स। क्योंकि आई स्टिल वंडर कि 1200 resumes from the VIT and they cut it down to the 60। मतलब सिर्फ 60 रिज्यूमेज उन्होंने निकाले, और ये सिर्फ नियो की बात थी। लेकिन नियो से पहले भी ऐसी कंपनीज आई थी कैंपस में जिन्होंने रिज्यूमे बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग करी है। तो यार देखो, रिज्यूमे ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखो। वीआईटी में आप सबको पता है कि हमारा एक खुद का फॉर्मेट कम हमें कॉलेज देता है। आई वुड लाइक टू से टू एवरीवन कि वो वाला फॉर्मेट छोड़ दो, ठीक है। उसके लिए आपको प्लेसमेंट सेल भी प्रेशराइज नहीं करती है, आपके पास उसकी एक कॉपी होनी चाहिए। क्योंकि कुछ कंपनी के केसेस में वही चलता है, लेकिन कुछ कंपनी के केसेस में स्टैंडर्ड एटीएस फॉर्मेट में रिज्यूमे मेंटेन करो। क्योंकि वो आपके ऑफ कैंपस और एज वेल एज आपके ऑन कैंपस दोनों जगह काम करेगा। अगर आपकी रिज्यूमे पे शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है तो आपका वो रिज्यूमे आपको सब लोगों से डिफरेंशिएट करने में की रोल प्ले करेगा। तो भी आप बात करते हैं, और जो न आपने रिसोर्स खुद की बनाई रखी है, क्या वो आप दे सकते हो हमें? अ, जैसे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाए उससे। हाँ, मतलब आई एम ओपन टू शेयर ऑफ कोर्स। मेरे को इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर तुम्हें मेरे डॉक्स भी चाहिए तो आई विल शेयर विद यू, नो इश्यू, आई विल शेयर विद जो भैया। एंड यू या। अब बात करते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग। ओके। अब कैसा चल रहा है? हाँ, सो अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ तो सेकंड डे, जब हम फर्स्ट डे इज लाइक कि क्वाइट एंजॉइंग डे। वो हमारा ओरिएंटेशन, हमारा लंच, एवरीथिंग सब था। उसके बाद व्हेन वी गॉट द सिस्टम्स ऑन द सेकंड डे ना, सो हमें हमारी टीम्स का पता चल गया था कि हमारे कौन मैनेजर्स हैं, हमारी टीम्स क्या है। जैसे कि आउट ऑफ लाइक वी आर 12 ना, सो 2 पीपल्स आर प्लेस्ड इन द टेस्टिंग पार्ट। ओके, दे आर एसडीईटी, वी ओके। आर एसडीज, दे आर एसडीईटी 1। सो बेसिकली ज्वाइनिंग के बाद दे आर वेरी क्लियर, हमारे मैनेजर्स ने हमको क्लियर मेंशन किया था कि नियो इज अ कल्चर कि आप साथ साथ वर्क करो, डेवलपमेंट करो और सीखते जाओ। वहां पे ऐसा नहीं था और कंपनीज की तरह कि आपके लिए कोई इनिशियल लर्निंग पीरियड हो, आपके लिए कोई प्रॉपर केटीज चल रही है 2 to 3 months तक, या आपके लिए कोई ट्रेनिंग सेशंस हैं, कुछ नहीं था। सेकंड डे हमें बता दिया गया था दीज आर द गोइंग ऑन प्रोजेक्ट, दीज आर द गोइंग टू बी स्टार्ट प्रोजेक्ट्स। अब आपको इन प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। और मैंने अपनी इंटर्नशिप के ड्यूरिंग आई ज्वाइंड ऑन 13 Feb। मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई 31st of July को, एंड देन फर्स्ट ऑफ आफ्टर दैट इन अगस्त आई स्टार्ट वर्किंग एज द फुल टाइम एम्प्लॉय SD1 देयर। सो मैंने अपनी इंटर्नशिप के ड्यूरिंग 2 प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। These are the projects that is on production of my company. Our users are using these things. So ये है नियो का एक्चुअल कल्चर। और ये सिर्फ मेरा ही नहीं, हमारा, हम जितने लोग वहां पे थे सबने अपनी अपनी टीम्स में इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट किया। लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन इज लाइक दैट कि वो ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप लर्न कर रहे हो सिर्फ बैठ के, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आप सिर्फ ट्रेनिंग्स ले रहे हो। नहीं, आप प्रॉपर डेवलपमेंट कर रहे हो, आप डेवलपमेंट के साथ नई चीजें सीख रहे हो। क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस होता है कि जब हम कॉलेज से ट्रांजिट करते हैं ना, कि पूरा प्रीफेस बदल जाता है। जब मैं भी कंपनी में गया था ना, तो मेरे को भी लगता था कि यार मेरे को जावा में बैकएंड आता है, ये आता है, वो आता है। लेकिन जब हम प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट्स करने जाते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हम बहुत सारी चीजें, जो बहुत डीप चीजें हैं, हमको नहीं पता। लेकिन वहां पे जब हम जाते हैं ना, तो डेवलपमेंट के साथ सब सीख जाते हैं। तो ये आफ्टर ज्वाइनिंग मेरा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छे से इंटर्नशिप का टाइम पास आउट हुआ। मैनेजर्स आर क्वाइट चिल देयर,
they are very quite chill, helpful and knowledgeable also. मतलब वो हमेशा आपको ऐसा नहीं करेंगे कि प्रेशराइज कर रहे हैं या आप किसी चीज में स्टक हो गए हो तो आपको डांट रहे हैं, नहीं. दे नो कि यू आर फ्रेशर्स, तो वो आपको बताएंगे, वो आपको सिखाएंगे. बट अब बताना सिखाना इज मीन कि ये नहीं कि आप 3-4 दिन, एक हफ्ते तक सिर्फ उन चीजों को पकड़ के बैठे हो. आपको कैचअप करना है, वापस अपना डेवलपमेंट कंटिन्यू करना है. और जो सबसे अच्छी चीज मेरे साथ हुई ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पार्ट, नियो हर साल नियोथॉन ऑर्गेनाइज करता है इंटरनली इन आवर कंपनी ओनली. दे हैव लार्ज मनी प्राइजेस फॉर दैट. तो वो ईयर में 2 टाइम्स होता है. सो मार्च में वो आया एंड 30 फेब को आई गॉट ज्वाइन एंड नियोथॉन फर्स्ट राउंड इज ऑन 28 मार्च. सो आवर मैनेजर टोल्ड कि वी हैव टू ज्वाइन द नियोथॉन. सो मुझे कंपनी के अंदर अपनी टीम ढूंढनी थी. ऑब्वियसली मेरे को 1 मंथ हुआ था, मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं था. मेरे मैनेजर ने बहुत हेल्प आउट किया मेरे को. फिर द मेन थिंग इज दैट कि वी हैव टू थिंक अबाउट द आइडिया व्हाट वी आर गोइंग टू पिच इन फ्रंट ऑफ द ज्यूरी मेंबर्स. क्योंकि वहां पे 2 राउंड थे कि फर्स्ट आप अपना आइडिया पिच करो कि आप क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन कर रहे हो, और प्लस फिर उसके बाद आपको उसका डेमो भी देना था. और वो प्रॉब्लम्स जो भी थी या कुछ नया आप फीचर इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, वो सब लाइक रिगार्डिंग टू द न्यू ओनली. लाइक हमारे ऐप में आपको कोई फीचर चाहिए या आपको लगता है कि हम ये इश्यूज इंटरनली फेस करते हैं या हमारे यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको बेटर कर सकते हैं, तो वो आइडियाज हमको पॉइंट आउट करने थे. सो आई गॉट participated in the Neothon. Even my team cleared the first round of Neothon. After that, we also have a marvelous demo round there. Even our CTO likes our idea most. He also likes our demo. But as I told you that it's just a one point, like 1 month only in the Neo. So we are not much familiar about the UI part. So basically, we face some issues in the UI mapping of the backend. But our CTO still appraises us, and he also told us that he looking forward that we are going to complete this implementation in the next Neothon. So वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था नियोथॉन का वहां पे. तो नियो का कल्चर में यही बोलूंगा कि ऐसा है, अगर आप वहां पे आ रहे हो, आप चिल भी रहोगे, आपको मेंटल प्रेशर भी नहीं होगा. हाँ, आपके पास काम होगा, बहुत सारा काम होगा, लेकिन आप स्टिल उस काम को करने के लिए इंजॉयमेंट फील करोगे, क्योंकि कंपनी में सब बहुत हेल्पफुल है. आप किसी को भी इजीली रीच आउट कर सकते हो, और इट्स लाइक कि वहां कोई ऑफिस बैरियर्स नहीं है. हमारे मैनेजर हमारे साथ बैठते हैं. मेरे मैनेजर जस्ट सिट नेक्स्ट टू मी. Our CTO is also sits in the open area. If you have any idea, if you have any concern, just go and talk to them. So in the point of view of environment, it's quite good in the Neo. Thing is that कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा. आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी सीखोगे, क्योंकि Neo is a following the startup culture, because it's a startup only. So they are following that culture and still they are growing in their field. और वो हमेशा अपने आप को अपडेट करते हैं. उनका ऐसा नहीं है कि नहीं हमारा ये टेक स्टैक है तो हम वहीं रुक के बैठ गए हैं. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. व्हाट आई लुक आउट देयर कि वहां पे पाइथन में भी बैकएंड हो रहा है, वहां पे जावा में भी हो रहा है, गोलैंग, नेस्ट, नोड सब चल रहा है. वी हैव iOS डेवलपर्स ऑल्सो बिकॉज वी हैव ऐप. We have Android developers also, front-end developers also. In front-end, we have everything. React, Express, everything is there. We have great DevOps team, InfoSec team are there. So it's a good product, design, marketing. So it's a quite diversified company. And currently, we have one main office in terms of most of the employees and the tech in the Bangalore Whitefield. Apart from that, we have Neo Forex. That is the one segment of Neo only. We have Neo Forex office on the MG Road in Bangalore. We have one office in Mumbai also. We have one more office in Hyderabad also. And by the end of this year, they are planning to expand it to, I guess, Delhi. Yeah, they are applied for the RBI license, because we need the RBI license to open our Forex offices.
So by the end of this year, we will be in the Delhi also. ओके भाई, दैट्स गुड। सबसे लास्ट क्वेश्चन भैया, Yeah. हम बात करें, अगर हम प्लेसमेंट ले रहे हैं, सैलरी चाहिए हमें, तो अगर पैकेज Okay. की बात करें, Okay. हाउ मच दे पेड? So like we have 60,000 as a stipend during the internship. ओके, Yeah. And after that, getting the FTs, we have a 14 LPA package there. 14 LPA, Yeah, 14 LPA. And we and have the 1 lakh. stipend was 60,000. Yeah, 60,000. 60,000, 60,000। Yeah, 60,000. ओके, दैट्स गुड। So we have package of 14 LPA, and after getting FT, you have 1 lakh joining bonus also. So there is a lot of privileges in the NEO. Yeah, so Yeah. So it's about the package. I think it's done, भैया, and Okay. thank you so much for doing this, Okay. especially Thank thank you. you, I'm sir, भैया। Okay, I am also feeling good. Like I'm always looking to help the people because I know ki how the depressing and the stressful the placement season is. I know about that. Right. So yeah, it's a pleasure for me that I am helping the people there. Thank you for giving me this opportunity. ओके गाइस, तो अपना एपिसोड खत्म। तो बेसिकली हमने जाना नियो सॉल्यूशन में हायरिंग प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंटरव्यू एक्सपीरियंस, सारे कुछ डिस्कस किए। और भैया कुछ हमें रिसोर्स देने वाले हैं, तो वो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, जो हेल्पफुल होगा हमारे लिए। एंड मेन बात, हमें अगर कोई हेल्प चाहिए, मीन्स अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए भैया से, तो मैं उनका आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन रीच आउट। ओके, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।